Hello, everyone. Welcome you all to a new episode of this podcast series. Today we have with us Harshvardhan sir. He is the Director of Law Admissions and Outreach at GD Goenka University. Thank you so much, sir, for coming to our show. Thank you so much, Amit, for having me here. Always a pleasure speaking with you. सर आपकी लॉ स्कूल से अभी तक की जर्नी कैसे रही? Amit, thank you so much for the question. And the journey started, and it will take me back to Kanpur, Uttar Pradesh, where I studied my class 12th. I studied at UP Kirana Savai Samiti Vidyalaya Public School, and I did my class 12th from there. I had PCM plus computers. So, law was obviously not my first choice, as for all the people who are studying PCM plus computers or actually having PCM or PCB. So, my interest in the field of law came when I was reading about what is changing the world and how the world is going to look in next 100 or 200 years, and who is going to change the world. And I suddenly realized that in the last 100 years, the profession which has actually ensured that a lot of nation got independence, and because of which a lot of people got their freedoms, was the profession of law. And obviously I was participating in a lot of quizzes and competitions, and my maternal uncle told me that common law admission test में 50 नंबर का जीके आता है. So मुझे लगा कि ये तो फिर ठीक है, हो जाएगा. And that's where the common law admission test came into the picture, CLAT, where I gave the CLAT, and I went to National Law University Punjab. Had a great time over there, a lot of learning, and Punjab is actually very, very beautiful, and Patiala too. So from there, I had always thought that education is something which excites me. Education as an industry, education as a field, education as a sector, because it gives you an opportunity to transform lives. And I've always believed it, and I always say this, that education is the only thing which can transform the family, can transform society. So that is where it all started. When I was in college, I was working with IDIA Punjab chapter. Later on, I devised my own mock test series by the name of CLAT Manthan. I started my first internship was with Achievers Guild Bhopal, and therein I wrote certain article for a CLAT magazine. And from there, I started working on writing content for some of the law coachings in this country. And especially when I look into it gave me a different kind of a comfort when I was teaching kids. तो वो एक चीज़ थी जो एक उस तरफ मुझे लेके जा रही थी कि भाई कैसे ये हो सकता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करें सोसाइटी, किस तरीके से एजुकेशन एक्सेसिबल बनाई जा सके. तो वहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ. फिर आया कोचिंग्स इंडस्ट्री में मेरा इंट्रो, और फिर बात चालू होती है जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री भारत में एक्चुअली चालू होती है. अमित, मुखर्जी नगर इन दिनों खबरों में है, ठीक है, तब भी खबरों में था हमेशा से. वो मेट्रो स्टेशन और वहाँ से वो जो दुनिया जाती है जो ऑटो से चालू होती है, और फिर एंडलेस सपनों को लेकर लोग आते हैं, और सपने साकार भी होते हैं, और कुछ लोग दुख के साथ वापस भी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं जीवन में. बिल्कुल सर. सो अमित, फिर वहाँ से चालू हुआ कोचिंग फील्ड में मेरा करियर. और फिर उसके बाद एक के बाद एक कोचिंग, फिर एक कोचिंग, फिर एक कोचिंग, फिर एक लीगल एड टेक. फिर मैं मिला प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा सर से. मैं पटना में था, वो आए थे, प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा सर एंड प्रोफेसर दीपू कृष्णा. Both have been a great mentor of mine. Actually learned so much from them. And वहाँ से शायद हमारा एक इंट्रोडक्शन चालू हुआ. And then I went and started working with Jindal Global University, which is in Sonipat. Later on, I moved to Bangalore in Karnataka. मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपने पूरे जीवन में कि मैं बैंगलोर भी जाऊंगा, है ना. तो फिर बैंगलोर जाना हुआ, एंड देयर आई मेट अनदर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, प्रोफेसर पैडी. And he inspired me to do something more for the society. And there the founder of the place, the place where I was working in Bangalore, Sanjay sir, again a visionary. Always when he talked about transforming lives.
And after that, I came to the north. As Jon Snow says, the north remembers. So came back to north, and currently, as you introduced, I am placed as Director of Law Admission and Outreach at GD Goenka University, which is a beautiful university set out in 65-acre campus. And there I met another set of visionary people, especially my Pro Chancellor, Mr. Nipun Goenka ji. His idea for the higher education and to transform it is completely, I can say, inspirational. And I met Professor Dr. Devanshu Srivastav. You know him. And the kind of learnings which I'm getting from these people, and I must also mention Professor Dr. C. Rajkumar. He had a great impact on me during my journey and to continue this journey. So I think the passion for the same of creating access to education lives, and I keep on living this life, Amit. थैंक यू सो मच सर. सर, लीगल एजुकेशन को रिसेंटली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं? अमित, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है ना. एक तो ये है कि लीगल एजुकेशन, तो पहले लीगल एजुकेशन के सेटअप पे जाने के लिए एक बच्चे को अपने देश में इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना. तो वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना. क्योंकि कुछ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनकी फीस हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है कि भाई इतनी फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, वहीं पे क्योंकि कुछ एक्सेस छूट जाता है अमित. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वो फीस उस समय ना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन बहुत ब्राइट बच्चे हों, ठीक है. तो मेरा हमेशा से मानना है कि इन बच्चों के लिए या तो आपको कुछ करना चाहिए, या तो फीस रिड्यूस कुछ ऑप्शन हो बेस्ड अपॉन योर सर्टेन मार्क्स, या कोई और क्राइटेरिया जो डीम फिट हो इन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को, तो उसे थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करके उसे थोड़ा सा कम करना चाहिए. तो फाइनेंशियल बर्डन अगर वहां से कम हुआ. फिर दूसरा जो ऑब्स्टिकल आता है वो आता है कि भाई अब जब लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो इनको तैयारी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता जा रहा है, तो भाई तैयारी करनी पड़ती है काफ़ी बच्चों का. और आपको भी पता है कि बहुत इनॉर्मस फीस है जो चार्ज की जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा, है ना. नो हार्ड फीलिंग्स टू देम बिकॉज दे प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज. बट अगेन काफ़ी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. आई एम हैप्पी दैट इन दैट स्पेस आई हैव सीन IDIA वर्क, एंड आई हैव सीन भारत नवोदय अभियान वर्क, एंड लॉट अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो पहले तो हमें इसको थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से. एंड आई एम हैप्पी दैट लॉ सीखो, आई प्लीडर्स, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट मेवरिक लॉन्च किया था जिसमें 100 रुपए के अंदर हम लोग क्या कहते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन दे रहे थे बच्चों को. तो समथिंग लाइक दिस हैड टू बी प्रोमोटेड इन दिस कंट्री. तो ये जो पहला ऑब्स्टिकल जो आप बात कर रहे थे लीगल एजुकेशन का, ये यहाँ लाई करता है. फिर आता है दूसरा वाला, जब बच्चा लॉ स्कूल में जाता है. अब लॉ स्कूल भी आप देखिए, एक इनके भी कई डिफरेंट नेचर हैं. एक है सरकारी यूनिवर्सिटी में, है ना. फिर है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो लॉ स्कूल है. फिर है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो लॉ स्कूल है. फिर आता है स्टेट यूनिवर्सिटी वाले लॉ स्कूल, और फिर आते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. अब मैंने इनको किसी हायरार्किकल ऑर्डर में नहीं रखा है ना. तो ये पूरा एक सेटअप है जहां जहां बच्चे जाके अपनी पढ़ाई करते हैं. अब अंदर जाने के बाद इन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि या तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी होती है, या वो जो फैकल्टी जो इंस्पायर कर सकें शायद वो कहीं कहीं नहीं होती है. मैं इसलिए कहीं कहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह मैं मान के चलता हूँ कि होती है, क्योंकि वो मैंडेट है ना रहना. सो मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. फिर उसके बाद जो ऑब्स्टिकल आते हैं वो आते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना. तो ये एक आता है प्रॉब्लम. फिर आता है कि भाई पूरा जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ लीगल एजुकेशन हो रहा है. तो जब तक आपके पास कोलैबोरेशंस नहीं होंगे, जब तक आपके पास पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स नहीं आके आपसे बात कर पाएंगे, तब तक आपको जो चेंजेस आ रहे हैं लीगल एजुकेशन में शायद वो समझ में दिक्कत आए. तो आगे चलकर यही सब कैरियर एडवांसमेंट में एक रुकावटें बनती हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए वो तो हो रहा है. इसीलिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लीगल फील्ड में आ रहे हैं. बट अपितु उसी सेम समय पे उन बच्चों को क्या हम ऑफरिंग हर जगह सेम तरीके से दे पा रहे हैं, ये एक सवाल हमेशा से रहेगा अमित. सर, इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन और है मेरा कि
पहले कम लोग लॉ परस्यू करते थे, लेकिन अब अचानक से बहुत सारे लोग लॉ परस्यू करने लगे हैं रिसेंट ईयर्स में, अगर देखा जाए। क्या रीजन है, और क्या इतने सारे लॉ स्कूल्स उतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? पहला, क्यों ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ना। तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और जितने भी अब आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आपको एक लीगल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ रही है। बहुत साल पहले की मैं बात बताता हूँ ना, आज से ज्यादा साल पहले भी नहीं, 10 साल पहले की बस बात आपको बताता हूँ। तब शायद ही किसी को पता था कि अगर हम तब ये था कि लॉ कर लेंगे तो वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, है ना। और फिर थोड़े समय बाद आया फिर कि आप लॉ फर्म चले जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता रहा, किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ती रही, फिर लोगों को पता चला जैक के बारे में, मतलब पता तब भी था लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं पता था। तो मैं इसमें बोलूंगा थैंक्स टू इंटरनेट ऑल्सो, है ना। तो इंटरनेट ने भी इस चीज को प्रोपोगेट करने में आसानी की। आप जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उसने भी काफी लोगों को ये चीजें बताई कि भाई लॉ एज अ प्रोफेशन में बहुत कुछ आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो वैकेंसीज आने लगी, पहले भी आती थी लेकिन शायद किसी को नहीं पता था, है ना। और कम लोगों को पता था रादर। आरबीआई में जो वैकेंसी आती हैं, ठीक है, और इसी तरीके से फिर यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी आती है मिनिस्ट्रीज में, अब इनके बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, और फिर ये पता चलने लगा कि भाई दिस इज द सैलरी रेंज विच दे ऑफर, है ना। और वैसे भी हमेशा से बच्चों को तो एक ऑप्शन हमेशा बच्चे देखते रहते हैं कि विच इज द ऑप्शन विच इज मोर क्लोजर टू लाइफ। तो लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है विच इज मोर क्लोजर टू लाइफ। एवरी गिवन डे हम सुनते रहते हैं, आप अखबार भी पढ़ लें तो अगर 12 पन्ने का अखबार है तो 4 से 5 पन्नों में तो सिर्फ लॉ रिलेटेड ही खबर होगी। आई एम इंक्लूडिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनटू दिस, है ना। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से लेकर फिजिकल फिर हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर हर जगह या तो पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा या लीगल के कहीं ना कहीं तो बात होगी ही होगी। ओलंपिक भी होगा तो ओलंपिक चार्टर की बातें होंगी, यूनाइटेड नेशन भी होगा तो यूनाइटेड नेशन चार्टर की भी बातें होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे ना तो लॉ इतना इंट्रिंसिक हो गया, इतना हिस्सा बन गया। और फिर आजकल आजकल आप देखिए, मैं इसमें शुक्रिया अगेन करना चाहूंगा हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी, है ना, कि अब इतना ज्यादा हर वेब सीरीज, हर दूसरी वेब सीरीज में आप देखिए लॉ को एक मेन कैरेक्टर दे दिया गया है ना। राइट। मामला लीगल है, ठीक है, इलीगल हो गया। पहले तो ये था कि जो इंग्लिश समझ पा रहा था वो बच्चा सूट्स देख लेता था तो उसको लगता था लॉ कर लें। मैक्सिमम ये आप सुनेंगे किसी से भी, सूट्स, बॉस्टन लीगल, उसके आगे आप कुछ नहीं सुनेंगे। बट आजकल जब आप देखिए तो ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गया है लॉ एज अ प्रोफेशन। जो आपका नेक्स्ट सवाल था वो ये था, क्या इतने लीगल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। तो अमित, मैंने हमेशा से माना है कि जो लीगल इंस्टीट्यूशन इस समय एस्टैब्लिश्ड है कंट्री में, उनको हमें मजबूत करने की जरूरत है रेदर देन ओपनिंग अ न्यू वंस। हाँ, आप ओपन करिए, जहां नहीं है वहां ओपन करिए। आप देखिए, जब आप इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ते थे या अभी भी जब आप पढ़ते होंगे तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज होती है। वैसे ही मैं बोलता हूं कि होना चाहिए लीगल एजुकेशन इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। तो पहले आपको ये करना चाहिए कि आप देखिए कि जो आप प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, जो मतलब एक लीगल इंस्टीट्यूशन आप लाने वाले हैं लीगल एजुकेशन का, उस एरिया में उसकी क्या जरूरत है, क्या उससे वहां के क्षेत्र में जो विधि शिक्षा का दायरा है क्या वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उससे किसको फायदा मिलने वाला है, क्या उससे हमारा जुडिशियल सिस्टम में कुछ मजबूती आएगी, और उसके लिए फंडिंग क्या अवेलेबल है, क्या वहां के लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्या सरकार उसमें पूरी तरीके से सहयोग कर सकती है। तो हमें लीगल एजुकेशन इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा बिफोर वी इवन ग्रांट समबडी मोर परमिशन टू ओपन अ लॉ स्कूल। और रही बात एस्टैब्लिश लॉ स्कूल की अमित, तो हमें कुछ जो लॉ स्कूल हैं अच्छा कर रहे हैं उनको हमें मेंटर बनाना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेंटर की तरह काम कर रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए, बट उसे हमें थोड़ा सा एक प्रारूप देना पड़ेगा जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड लीगल एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं वो दूसरे को हैंड होल्ड करें जहाँ तक कर सकते हैं, है ना। फैकल्टी जो है वो टेम्पररी फैकल्टी से ना पढ़ाया जाए, फुल टाइम फैकल्टी हो, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों को एक्सपोजर मिले, सब जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अभी हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी की बातें चल रही हैं, तो क्या ये क्रॉस यूनिवर्सिटी, क्रॉस कॉलेजेस किया जा सकता है? अगर ये किया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। और जहां पे भी हमें लगता है कि हमें प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, तो इसमें गवर्नमेंट को खुद में कुछ फंडिंग, खुद में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू फंडिंग करने की जरूरत पड़े तो की जाए, पीपीपी मॉडल ला लिया जाए, ठीक है। इस तरीके से जो एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है ना। और जरूरत तो हमेशा रहेगी लॉ स्कूल की, क्योंकि हमें भी पता है कि लॉ इज अ फॉर्मल ग्लू दैट बाइंड्स फंडामेंटली डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी टुगेदर।
तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब तक इंसान है तब तक लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक इशू होगा तो भैया वही डिस्प्यूट कहलाएगा, और जब तक डिस्प्यूट है तो आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। सर, ट्रेडिशनल लीगल एजुकेशन में क्या चेंजेस लाने चाहिए? हमें हमेशा करिकुलम की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं दो चीजें बोलूंगा कि करिकुलम के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और आपको इंस्पायरिंग फैकल्टीज होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन में। फैकल्टी हु कैन इंस्पायर यू, फैकल्टी इज गोना, एवरीथिंग इज गोना चेंज। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर मनोज शर्मा सर। उन्हीं क्लास कभी हम लोग मिस नहीं करते थे। इतनी इंस्पायरिंग क्लास थी कि हमें मन करता था कि वो क्लास कभी भी लग जाए। प्रोफेसर कृष्णन महाजन सर, और प्रोफेसर आनंद पवार सर, और बहुत सारे प्रोफेसर जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर, ठीक है, हिस्ट्री की टीचर, तो और भी बाकी सब्जेक्ट्स की टीचर। तो वो एक इंस्पायरिंग एक माहौल था कि मन करता था कि क्लास चले जाए। सुबह 7 बजे क्लास लगे, 8 बजे क्लास लगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसी तरीके का मैं समझ रहा हूँ कि हमें एक सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे एक करिकुलम मॉडर्नाइज्ड हो, जो डिमांड है इंडस्ट्री की, सोसाइटी की। सब लोग इंडस्ट्री डिमांड करते हैं, बट लीगल एजुकेशन इज मच मोर देन इंडस्ट्री। यू हैव टू डिफाइन इंडस्ट्री। इफ यू से कि इंडस्ट्री की अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन करना है, नहीं जी, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। सोसाइटी का हिस्सा है इंडस्ट्री। और जब हम ये चीज सिस्टम समझना बदल कर देते हैं ना कि हम पढ़ाई से भी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड है। इंडस्ट्री डिमांड क्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले कहीं एआई की डिमांड नहीं थी, आ गई। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा शायद मुश्किल होगा, बट यू हैव टू लुक इनटू व्हाट नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें कंपलसरी पार्ट ऑफ करिकुलम बना दिया गया है या बनाना चाहिए। अब बना भी दिया है तो क्या वो वहाँ पे लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं? सब्जेक्ट जैसे मीडिएशन, सब्जेक्ट जैसे मैं बात करूंगा साइबर लॉ हो गया, सब्जेक्ट्स बात करूंगा मेडिसिन लॉ हो गया, सब्जेक्ट्स बात करूंगा जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है न्यूज में, स्पोर्ट्स लॉ। तो हमारी करिकुलम को रिवाइज करना बहुत जरूरी है अमित, है ना। केस स्टडी मेथड जो है, जो हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा कि उसको लाना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। कितने लॉ स्कूल से इनकॉर्पोरेट कर पाए? मैं उन कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, बट उसके अलावा भी एक दुनिया है कि जो 100 लॉ कॉलेज हम लोग सुन लिए, उसके अलावा भी, ठीक है। तो क्योंकि सारे बच्चे आके फिर पार्ट तो उसी सिस्टम का बन रहे हैं, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और अगर जहां तक हम नहीं कर पा रहे, जब तक हमें ऐसा नहीं लग रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट फंडेड कुछ करके हम लोग को फिनिशिंग स्कूल टाइप का कुछ लॉन्च करना चाहिए। जैसे सरकार ने स्किल इंडिया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो उनको इसी टर्म में कुछ लाना चाहिए, लीगल स्किल इंडिया प्रोजेक्ट। ये कुछ होगा कि जहां पे एक बच्चा जब लॉ स्कूल से निकला है तो क्या वो फुली इक्विप्ड है टू हेल्प द पीपल हु रिक्वायर द लीगल असिस्टेंस, है ना। क्योंकि गलत लीगल एडवाइस या गलत लीगल असिस्टेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा जानबूझ के किया जाता है, बट हमेशा आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी एडवाइस कर रहा है क्या वो सही एडवाइस कर रहा है ना। क्योंकि इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इट इज अबाउट द पीपल। सो हम लोग को थोड़ा इसमें प्रोएक्टिव एफर्ट लेने की जरूरत है। तो लीगल स्किल इंडिया मैं चाहूंगा कि हो, है ना। सर, बहुत सारे प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं जो 3 लाख से लेके 10 लाख ईयरली चार्ज कर रहे हैं, एंड अगर आप देखें 5 साल की फीस अराउंड 20 से 50 लाख के करीब हो जाएगी। इनफैक्ट प्राइवेट लॉ स्कूल्स ही नहीं, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी काफी चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जिनको लॉ परस्यू करना है एंड वो टैलेंटेड हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस फी स्ट्रक्चर वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है कि इतनी ज्यादा फीस है इन लॉ स्कूल्स की? ये सवाल कंट्रोवर्शियल है या नहीं, बट अगेन जैसा मैंने बोला, इंडिया में लीगल एजुकेशन का काफी सेटअप है, रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटीज टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू स्टैंड अलोन लॉ कॉलेजेस एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज। सो अमित, क्या है कि लीगल एजुकेशन इंडिया में ना साल के 15,000 रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक पहुंच गई है। आजकल आप देखिए कि अभी क्या, पहले से भी आप देखिए कि वाई पीपल हैव एस्पायर्ड टू गो टू हार्वर्ड, येल एंड कैम्ब्रिज। सो सवाल वही था, फॉर एक्सपोजर। तो सारी कहानी वहां आती है कि एक्सपोजर है क्या, किस टाइप का एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सपोजर कैसे मिलेगा आपको एक लॉ स्कूल में? काइंड ऑफ फैकल्टीज एंड द पीयर ग्रुप, है ना। तो अभी क्यों महंगी है फीस? क्योंकि इन जगहों पे शायद इंफ्रास्ट्रक्चर है,
इन जगहों पे अच्छी फैकल्टी है, इन जगहों पे प्लेसमेंट करवाने के लिए प्लेसमेंट कमिटी है, इन जगहों पे इन कोलैबोरेशंस हैं, तो पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कम एंड स्पीक टू यू व्हाइल यू आर ऑन कैंपस। पीयर टू पीयर लर्निंग की मोर अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि लाइब्रेरी ज़्यादा तरीके से डेवलप्ड है, ई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं अमित। तो शायद ये रीज़न है। तो शायद इन वजहों से, बिकॉज इन सबको क्योंकि लाना, क्योंकि जिन नेचर की आपने बात की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट the money for providing all these services comes out of the pocket of the students, है ना। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और इसको सरवाइव करने के लिए शायद ये फीस है। अब ये फीस किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। एंड क्या वो फीस सही है गलत, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बट किस तरीके के आप एक्सपोजर दे रहे हैं, किस तरीके की क्वालिटेटिव टीचिंग दे रहे हैं, क्या इंस्पिरेशनल माहौल दे रहे हैं, उसके बेसिस पे शायद ये सेट किया गया है। सर, आपने काफी साल क्लैट कोचिंग्स के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि जो एस्पिरेंट जो क्लैट के लिए 2 से 3 साल भी ड्रॉप लेने लग गए हैं, तो आपको लगता है कि क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए? देखिए, हमें समझना पड़ेगा नेचर ऑफ एग्जाम। नेचर ऑफ एग्जाम जो है ना, वो है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का, गेटवे टू नेशनल यूनिवर्सिटी, है ना। तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस एग्जाम में सब कुछ पूछा वही जाता है जिसमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत ना हो। जस्ट टेस्ट योर वोकैबुलरी स्किल्स, लिंग्विस्टिक जिसको मैं बोलना चाहूँगा, और दूसरा ये है कि कुछ जगहों पे रिकॉलिंग कैपेसिटी चेक करता है और कुछ जगहों पे आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करता है। तो अगर कोई भी बच्चा अवेयर है सराउंडिंग से कि क्या चल रहा है, नेचर भी पेपर का चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, है ना, तो पैराग्राफ बेस्ड फॉर्मेट में पेपर आने लगा है, क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा जो अवेयर है अपनी सराउंडिंग से अमित, वो ये एग्जाम क्रैक कर सकता है बिना एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिए। बट हाँ, मैंने वही जो कैवेट डाला, अवेयर है अपनी सराउंडिंग से, है ना। और रीडिंग स्पीड तो हमेशा से मैटर करती ही है, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, भले वो लॉ का हो या इंजीनियरिंग का हो, है ना, क्योंकि आप एक, इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब रही बात कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक फैसला है। अब मैं यहाँ पे फिर से कैवेट दूंगा, मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है, पर्सनली ये मानना है कि आप एक बार 12th के साथ अटेम्प्ट दें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू कैन डू इट बेटर, और आपको लग रहा है कि यू आर जस्ट ऑन द लाइन, या आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम मिले और आपके पास वो टाइम है, अपॉर्चुनिटी है और रिसोर्सेज हैं, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसला आ जाता है। तो आप फिर एक और अटेम्प्ट दें, उससे ज़्यादा मैं शायद ना सजेस्ट करूं। और वो जो समय आप इसमें बचाएंगे, आप लॉ कॉलेज में जाइए, वहाँ पे अपनी स्किल इन्हांस करिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सीखने का प्रयास करिए, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने का प्रयास करिए। तो मेरा ये मानना है मैं। सर, अगर किसी स्टूडेंट को लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसे क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? अमित, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे से डेली पूछा जाता है ना। तो चाहे पेरेंट्स हों, बच्चा हो, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, सबके दिमाग में ये रहता है, और रहना भी चाहिए कि व्हाट आर द एसेंशियल्स क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द करेक्ट, इफ आई मे से, और द राइट, इफ आई मे से, लॉ स्कूल। तो इसकी कुछ ग्राउंड रूल हो सकते हैं। अगेन वो मेरा इंडिविजुअलिस्टिक आंसर रहेगा एंड थोड़ा बायस भी हो सकता है। तो एक तो ये रहेगा द काइंड ऑफ फैकल्टीज। मैं हमेशा से बोलूंगा, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नोन बाय इट्स फैकल्टीज, द एंड। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आजकल के जहाँ पे दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक लॉ यूनिवर्सिटी के लिए क्या हुआ आसान होगा कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री बैकग्राउंड और बार एंड बेंच से क्या उनको अपने कैंपस में बुलाना, तो उसके लिए लोकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क हो जाता है। तो ये दूसरा रहेगा। तीसरा ये रहेगा कि क्या वो लॉ स्कूल जहाँ पे वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वहाँ का इंट्रेंस बैरियर क्या है, मतलब क्या वहाँ पे एडमिशन लेते समय एडमिशन लेना क्या इतना आसान है कि आप गए और आपने पैसा दिया और एडमिशन हो गया? अगर ऐसा है तो बिल्कुल ना लें। आप एक ऐसे लॉ स्कूल जाएं जहाँ पे एटलीस्ट कोई कुछ क्राइटेरिया हो, ठीक है, एग्जाम लेने का, एक एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग।
because these the kind of people who will study with you will determine a lot of things in your life, the kind of peer group which you will have. So essentially आपको ये देखना जरूरी है. तीसरा ये फ्रेमवर्क रहेगा. और चौथा फ्रेमवर्क ये रहेगा कि क्या किस टाइप की स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ होती हैं कैंपस में, है ना. क्योंकि देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है. स्पोर्ट्स का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट को भी इन्हांस करना है ड्यूरिंग उस समय जब आप कैंपस में हैं, क्योंकि कैंपस लाइफ वो लिमिटेड है हम लोग के जीवन में, ठीक है. तो वो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क रहता है. फिर अगेन बहुत सारे बच्चों के लिए इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का एक रहता है कि सर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट क्या है, उसका एवरेज क्या है. तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा आप उस यूनिवर्सिटी और लॉ स्कूल की कैंप जो प्लेसमेंट टीम है उससे ज़रूर मिलें, है ना. ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर रहता है. इसके अलावा जो कहीं किसी समय पे कोई बात नहीं करता, वो मैं बोलूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीस. कि क्या आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पीस है आपके पढ़ने के लिए, क्या वहाँ उस टाइप का एटमॉस्फेयर है, वो बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा. क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के ऊपर तो बात हो जाती है. और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन आप सोच रहे होंगे क्यों अभी तक मैंने नहीं बोला, बट अगेन nobody will remember the acres of campus you had. Nobody will ask you which kind of a chair or a sofa you sat in. People will always ask who taught you. People will always ask the question with respect to law, do you understand this concept or not? People will always ask this. So it has to be about the kind of simulation which you receive, the kind of inspiration which you receive in these places. That's important. आपने अभी recent देखा होगा, everybody is focusing on infra कि we have infra. तो this should not be a criteria कि आप infra है तो मतलब infra is just one thing. It's important, मैं हमेशा से बोलूँगा, it's important to support the learning ecosystem. ये बहुत ज़रूरी है. But infra एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मेन फ्रेमवर्क फैकल्टी है, मेन फ्रेमवर्क आपका पीयर ग्रुप है. तो ये वो चीजें हैं जो एक बच्चा देख सकता है बिफोर मेकिंग अ चॉइस. सर बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं जो जून जुलाई में वेकेशन देते हैं एंड उस टाइम बच्चे इंटर्नशिप कर नहीं पाते क्योंकि कोर्ट्स बंद होते हैं. कुछ पॉलिसी या कुछ चेंजेस लाने चाहिए. और जो टाइम फ्रेम है लॉ स्कूल्स का, सारे लॉ स्कूल का मैं कहूंगा एक होना चाहिए कि पर्टिकुलर मंथ में इन विंटर्स आप टाइम छुट्टी दे दो. क्योंकि मोस्टली जब छुट्टी मिलती है तब दिसंबर में भी कोर्ट्स बंद होते हैं, जून में भी कोर्ट्स बंद होते हैं, तो बच्चों को इंटर्नशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी अपनी अलग एकेडमिक कैलेंडर बना रखा है. किसी ने ऑफ दे दिया है जून में, किसी ने ऑफ दे दिया है जुलाई में, किसी ने ऑफ दे दिया है दिसंबर में, किसी ने दे दिया है जनवरी में. बट मैं बस कहना चाहूंगा कि जो आपका सजेशन है इसे सबको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो हमारे लीगल सिस्टम का सिस्टम को देख पाए बहुत नज़दीकी से और समझ पाए कि किस तरीके से असलियत में ग्राउंड में लीगल वर्क होता है. तो उसके लिए ये जो आपने अभी सजेशन दिया या जो भी आपने कमेंट किया कि भाई वेकेशन उसके साथ अलाइन करने चाहिए, अगर नहीं है किसी यूनिवर्सिटी या लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो उनको शायद ये करना चाहिए, है ना. बट अगेन मैं फिर से बोलूंगा लीगल सेक्टर या लीगल प्रोफेशन सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है. ये भी मैं एक बात कहना चाहूंगा. बहुत तब भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चे के पास अवेलेबल रहती है. वो एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में के साथ, पुलिस जो हमारा सिस्टम है उसके साथ काम कर सकते हैं, बच्चे लॉ फर्म के साथ काम कर सकते हैं, बच्चे पीएसयू में काम कर सकते हैं, बच्चे मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हैं, और बच्चे और बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जनरल काउंसिल्स के साथ या उनकी टीम्स के लीगल टीम के साथ काम कर सकते हैं. तो बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो उस समय भी खुले हुए हैं. बट अगेन जो आपने बात बोली और जो मेन रीजन था लीगल एजुकेशन को इंडिया में इतने बड़े लेवल पे डेवलप करने का, अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए. सर जो प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, आपको क्या लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो पढ़ाएं लॉ स्टूडेंट्स को तो ज्यादा बेटर रहेगा और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए? अमित, मैंडेटरी तो शायद कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, मैं पूरी आपकी बात से सहमत हूँ कि बेटर एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को, उसे ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलेगा. बट अगर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप टीच करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, है ना. तो हमेशा से मॉडल आया है कि
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो हम बचपन से सीख रहे हैं, है ना। तो हमें इन दोनों को मर्ज करने की जरूरत है अमित। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। कि एक इंसान है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप और आप क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आप ये समझते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि आपसे कोई बोले कि एफआईआर के बारे में कुछ बता दीजिए, तो आप बोलेंगे, आप क्लास में आएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं एफआईआर तो क्या, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई सर, ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर देते हैं। और फिर आप बोलेंगे सर जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ये है। तो ये आप प्रैक्टिकलिटी में देख रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपने आपको क्या कहते हैं, आप लगेगा कि इतनी कॉपी ऑफ एफआईआर होती है, कागज में लिखा है, लेकिन आप आएंगे बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जबकि होता होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम है ना। तो डिपेंड करता है कि जो इसको हम इसीलिए मैंडेटरी मैं नहीं बोलूंगा कि जो पढ़ाने आने वाला है, हाउ विल यू गॉज कि भाई उसकी क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो प्रैक्टिसिंग है, एडवोकेट है और अच्छा से प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या वो टाइम निकाल पाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इतने समय के लिए, एक दूसरा है। और क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक टाइम फ्रेम होता है, तो क्या उस टाइम फ्रेम में ही कोर्ट भी रन कर रही है ना। तो क्या वो वहां पे आकर वो समय डिवोट कर पाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा एक एम्बिट रहा। चौथा, क्योंकि बीएनएस जिसकी आपने बात की, ये तो अभी न्यू सेट ऑफ लॉ है, तो अभी तो इसमें प्रैक्टिस डेवलप ही कर रही है। रही बात सीपीसी की, तो वहां पे मैं बोलूंगा हाँ। तो मेरा ये मानना है इंडिविजुअल लेवल पे कि हमें दोनों को मर्ज करने की जरूरत है। हर लॉ स्कूल को, जैसा कि हम अपने यहाँ करते हैं कि विजिटिंग फैकल्टीज हैं, विजिटिंग फैकल्टीज को हिस्सा बनाइए करे अपने टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम का, है ना। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ने बनाया हुआ है, आइदर विजिटिंग फैकल्टी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, या एडजंक्ट प्रोफेसर है। तो है, ये चल रहा है। Thank you so much, sir, for coming to our show. Amit, thank you so much for having me here, and it was pleasure speaking with you. I've always believed that education can transform the lives of the people, the lives of the society, and we should all put our hands to this particular cause. And what actually I can tell to all the kids out there preparing, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। मुझे अच्छा लगा कि आपने उन बातों के उन टॉपिक्स के ऊपर और उन बातों के ऊपर बातें की जिनके ऊपर हमें एक्चुअली बात करनी चाहिए। इंक्लूसिविटी, करिकुलम, बच्चों का फ्यूचर। सो हैप्पी टू स्पीक विद यू अमित।